آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں قاضی محی الدین۔ خبروں کے اس سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر خلد آباد میں پیرہن اور موئے مبارک کی زیارتوں کا کیا گیا اہتمام۔ لاکھوں عقیدت مندوں نے کی زیارت، جگہ جگہ جلوس اور جلسے بھی منعقد۔ 25 اگست کو معطل شدہ میونسپل جنرل باڈی میٹنگ آج کی گئی تھی منعقد۔ مختلف معاملات پر برسر اقتدار اور حزب اختلاف کے کارپوریٹرز دکھائی دیے آمنے سامنے۔ مہنگائی اور بڑھتی بے روزگاری کے خلاف NCP شرد پوار گروپ کی جانب سے شہر میں نکالی گئی ترنگا وہیکل ریلی۔ بڑی تعداد میں عہدیداران و ورکرز ہوئے شامل اور لگائے حکومت و انتظامیہ کے خلاف جم کر نعرے۔ اور نشے کی لت پوری کرنے ایک نوجوان نے AI کی مدد سے تیار کر لیا ڈاکٹر کا بوگس نسخہ۔ دکاندار کی مستعدی سے ملزم گرفتار۔ فاضل عدالت نے سنایا 2 دن پولیس کسٹڈی کا حکم۔ خبریں تفصیل سے۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر خلد آباد میں پیرہن مبارک اور موئے مبارک کی زیارتوں کا اہتمام کیا گیا تھا، لہٰذا یہاں دن تمام عاشقان رسول کا ہجوم دیکھنے کو ملا۔ اسی طرح گزشتہ روز شہر میں نکالے گئے جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل عاشقان رسول میں آئی لو اورنگ آباد فاؤنڈیشن کی جانب سے ٹھنڈے مشروبات تقسیم کیے گئے۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی خلد آباد میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر حضرت سید زین الدین داؤد حسن شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ کے احاطے میں موجود پیرہن مبارک یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس لباس کی زیارت کے لیے لاکھوں عقیدت مند پہنچے۔ یہ مقدس پیرہن مبارک ہر سال عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر عقیدت مندوں کے دیدار و زیارت کے لیے رکھا جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت خواجہ شیخ برہان الدین غریب رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ کے احاطے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک کی زیارت کے لیے بھی بڑی تعداد میں زائرین پہنچے۔ منگل کی رات 9 بجے سے شروع ہونے والی زیارت بدھ کی نصف شب تک جاری رہی۔ لاکھوں زائرین کی آمد کے پیش نظر انتظامیہ کی جانب سے تقریباً 1.5 کلومیٹر تک بیریکیڈنگ، خصوصی روشنائی، آمد و رفت کے لیے الگ الگ راستوں اور لنگر کا انتظام کیا گیا تھا۔ مختلف مقامات پر شہریوں اور سماجی تنظیموں کی جانب سے چائے، پوہے، بسکٹ اور پانی بھی فراہم کیے گئے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر حضرت شیخ منتجب الدین المعروف زرزری زربخش دلہا رحمۃ اللہ علیہ کے 5 روزہ عرس کی بھی اختتامی تقریب عمل میں آئی۔ زائرین نے پیرہن مبارک کی زیارت کے بعد درگاہ زرزری زربخش دلہا رحمۃ اللہ علیہ پر بھی حاضری دی۔ زائرین کی بڑی تعداد کے پیش نظر پولیس کی جانب سے بھی سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے تھے۔ اس موقع پر سلوڑ کے رکن اسمبلی عبدالستار، رکن کونسل ستیش چوہان سمیت مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے بھی حاضری دی۔ اور ہم ہر سال کی طرح اس سال بھی راویس خواجہ رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ پہ پیرہن شریف کی زیارت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ 22ویں خواجہ ہے اور ان کے پاس جو ہے تو آ کے پیرہن مبارک رک گیا۔ بس یہ اورنگ آباد والے زائرین کی خوش قسمتی ہے کہ جو اورنگ آباد میں جو ہے تو ایسا مبارک چیز محفوظ ہے، اور سب اسی کی برکتوں سے جو ہے تو سب معاملے چل رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے تو پورے اورنگ آباد شہر میں امن و سکون قائم رکھ اور سب میں بھائی چارگی عطا فرما، اور سب قوم جو ہے تو مل جل کے رہے۔ ہم ایسی دعائیں مانگتے ہیں اس بارگاہ میں۔ پیرہن مبارک کی زیارت کے لیے خلد آباد کہ یہ تو ایسا بتاتے کہ بھائی خواجہ محی الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کے 22 خواجہ تک یہ پیرہن مبارک ایسا آیا۔ کس کا پیرہن مبارک؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ یہاں تو کب سے یہ تو وہ لوگ کو معلوم، باقی ایسا وہاں لکھل ہے۔ آپ کب سے آ رہے ہیں؟ وہاں کم سے کم 25 سال سے آ رہے ہیں۔ 25 سال سے آ رہے ہیں۔ ہر سال۔ بلا نام
जिला नागौर, ये लॉकडाउन में नागा हुआ। मैं हैदराबाद से आया हूँ। हैदराबाद से आया मैं फर्स्ट टाइम आया, जो आसर मुबारक की ज़ियारत हुई अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो फिर अगले साल भी आएंगे इंशाल्लाह। पिछले साल से इरादा था और इस साल मौका मिल गया है और इंशाल्लाह अगले साल भी आएंगे का, अगर अल्लाह ताला ने शर्फ हासिल फरमाया तो नसीब करा तो इंशाल्लाह। इंतजामात कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा इंतजामात है, कोई चीज़ की परेशानी नहीं है। ज़ायरीन जितने भी आ रहे हैं सुकून से इत्मीनान से ज़ियारत करके जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे फ़ोटो वगैरह नहीं लेना है क्योंकि आखिर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिब मुबारक है, जो कि बहुत मुक़द्दस चीज़ है। उसकी फ़ोटो वगैरह वीडियो शूट करके भेद भी करना नहीं है और अदब का लिहाज करना है बस। मैं खाजी मिसबाहुद्दीन खादिम दरगाह हज़रत सैयद ज़ैनुद्दीन दाऊद हुसैन शिराज़ी रहमतुल्लाह अलैह। यहाँ पर फ़ैरान मुबारक हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए काफ़ी लाखों लोगों का मजमा जमा होता है और ज़ायरीन के लिए तमाम सहूलत खुद्दामीन दरगाह हद खुर्द जो है हमारे तमाम खुद्दामीन मिल के करते हैं और बड़े हुस्न खूबी से तमाम ज़ायरीन का ख्याल रखा जाता है। पानी वगैरह का, लाइट का, इसका उनको कोई तकलीफ़ ना हो बोल के तमाम सहूलतें खुद्दामीन यहाँ पर मुहैया करते हैं। लिहाजा तमाम आने वाले ज़ायरीन से मैं गुजारिश करता हूँ कि बड़े सुकून के साथ आए और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सलाम पेश करें। ये इंशाअल्लाह ताला रात में 11 बजे तक चलेगा। जी हाँ इंशाअल्लाह खुदामीन ने तय कराया। अमूमन कितने लोग आते हैं यहाँ पे ज़ियारत के? कम से कम 5 से 6 लाख लोग आते हैं, आना जाना लोगों का चालू रहता है। जी आपका नाम बोलिए। मेरा नाम खाजी मिसबाहुद्दीन खादिम दरगाह सैयद ज़ैनुद्दीन शिराज़ी रहमतुल्लाह अलैह। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुरमसरत मौके पर शहर में मुख्तलिफ समाजी और फलाही सरगर्मियों का इनेकाद अमल में आया। इसी सिलसिले में आई लव औरंगाबाद फाउंडेशन की जानिब से जुलूस मीलाद में शरीक आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और शहरियान के लिए कोल्ड ड्रिंक्स का इंतज़ाम किया गया था। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर परवीन पवार, कारपोरेटर नवीन ओबेरॉय, रोज़नामा हिंदुस्तान के मुदीर आला नायाब अंसारी, इरबाज अंसारी और दीगर पुलिस अफसरान और फाउंडेशन के ज़िम्मेदारान व दीगर शहरियान मौजूद थे। प्रोग्राम के दौरान नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखने और जुलूस के शुरका को सहूलत फराहम करने पर भी तवज्जो दी गई। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर फाउंडेशन की इस फलाही सरगर्मी को शहरियान की जानिब से सराहा गया। शहर के नौजवानों का सबसे फाल और मुतहरिक NGO आई लव औरंगाबाद की जानिब से हर मजहब के मुख्तलिफ त्योहारों के मौके पर कुछ ना कुछ सरगर्मी अवामी और फलाही बुनियाद पर की जाती है। आज हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम विलादत पर जुलूस ईद मिलादुन्नबी के मौके पर 5000 कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल यहाँ जुना बाजार इलाके में तमाम जुलूस के शुरका को तकसीम की गई ताकि हुजूर का पैगाम से जो इंसानियत, मोहब्बत, भाईचारा का आवाम तक पहुँचे, साथ ही साथ मिठास के साथ पहुँचे और लोगों के दिलों में और जिस्मों में ठंडक हो। क्योंकि धूप काफी हो चुकी थी और जुलूस में लोग पैदल चलकर थक रहे थे, लिहाजा उनकी प्यास को बुझाने के लिए ये बेहतरीन नज़्म किया गया। ज़िला नांदेड़ के मज़ाफ़ात नरसी में ईद मिलादुन्नबी के मौके पर जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम किया गया था, जिसमें आशिकान रसूल ने बड़ी तादाद में शिरकत करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत और अक़ीदत का इजहार किया। इसी तरह ताल्लुक़ा फुलमरी में नगर पंचायत के दफ्तर में जलसे सीरतुन्नबी मुनक़िद किया गया, जिसमें स्कूली तलबा ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर पुरअसर तकारीर की। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर नांदेड़ ज़िले के नायगांव तालुक़े में वाक़ नरसी शहर में 26 अगस्त को मुस्लिम बरादरी की जानिब से जोश खरोश के साथ अज़ीमुश्शान जुलूस निकाला गया। जुलूस के पेश नज़र शहर के मुख्तलिफ चौकों में खूबसूरत बरक़ी खमखमों से सजावट की गई थी, जिससे पूरे शहर में जश्न का माहौल नज़र आया। जुलूस में मुस्लिम बरादरी के मर्दों और नौजवानों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मजहबी नारों से शहर के चौक गूंज उठे। मुख्तलिफ मकामात पर सियासी व समाजी शख्सियत की जानिब से जुलूस का इस्तकबाल किया गया।
جبکہ جلوس کے راستے میں شہریان کی بھی بڑی تعداد موجود رہی۔ امن، بھائی چارے اور سماجی ہم آہنگی کا پیغام دیتے ہوئے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جوش و خروش سے منایا گیا۔ جلوس کو کامیاب بنانے میں جملہ نوجوانان اہل سنت میلاد کمیٹی نرسی نے اہم کردار ادا کیا۔ الحمدللہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ جشن عید میلاد النبی 1501 سالہ جلوس محمدی سمپن ہوا۔ فیضان غوث اعظم دارالعلوم سے نکلتا ہوا جگلا سے ہوتا ہوا خکشہ علی پر آ کر ختم ہوا، اور تمام راجکیہ تمام سماجی کاریہ کرتے نے بھی اس میں شامل ہوئے، اور تمام مسلمان نائگو، نرسی، ہپرگا، کنالا، کنچلی اور شنکر نگر، ادھر سے دیگاؤں، ماندرم، اطراف و اناف کے کھیڑے پاڑے کے جو لوگ ہیں وہ تماموں نے شرکت کی۔ تعلقہ پھلمری میں بھی جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم منعقد کیا گیا۔ یہ جلسہ نگر پنچایت دفتر کے میٹنگ ہال میں منعقد کیا گیا۔ اس پروگرام میں بچوں اور بچیوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ اور طرز زندگی سے متعلق واقعات پیش کیے۔ اس موقع پر مقرر عبدالواجد قادری نے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر روشنی ڈالتے ہوئے امن، بھائی چارے، محبت، رحم دلی اور سماجی یکجہتی کا پیغام دیا۔ انہوں نے کہا کہ اسلام نے لڑکیوں کو بھی جینے کا مساوی حق دیا اور معاشرے میں مساوات و بھائی چارے کی تعلیم دی۔ پروگرام میں نگر ادھیکش راجندر ٹھومرے، نائب تحصیلدار سنجیو راؤت، پولیس سب انسپکٹر رام بارہاٹے، مفتی اظہر سید، مفتی ظریف قاضی اور دیگر معزز شخصیات بڑی تعداد میں موجود تھیں۔ پنیہ شلوک اہلیا دیوی ہولکر کسان قرض مکتی یوجنا کے تحت دوسری فہرست جاری کر دی گئی ہے، جس کے تحت اورنگ آباد ضلع کے 39,405 متاثرہ کسانوں کے 287 کروڑ روپیوں سے زائد کے قرض معاف کر دیے گئے۔ قرض معافی کی دوسری فہرست میں اورنگ آباد کے ہزاروں کسانوں کو بڑی مالی راحت ملی ہے۔ دوسری فہرست میں 39,405 کسانوں کو شامل کیا گیا ہے، جن کے لیے 287 کروڑ 34 لاکھ روپئے کی قرض معافی منظور کی گئی ہے۔ پہلی فہرست کے مستحق کسانوں کو شامل کرتے ہوئے اب تک ضلع کے 74,845 کسانوں کو مجموعی طور پر 518 کروڑ 50 لاکھ روپئے کا فائدہ مل چکا ہے۔ دریں اثنا باقاعدگی سے قرض کی ادائیگی کرنے والے کسانوں کے لیے ترغیبی رقم دینے کا مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے۔ کسان تنظیموں نے اس مطالبے پر احتجاج کی وارننگ دی ہے، تاہم دوسری فہرست کے اعلان سے قرض معافی کے منتظر ہزاروں کسانوں کو بڑی راحت ملی ہے۔ 25 اگست کو معطل شدہ میونسپل جنرل باڈی کی میٹنگ آج دوبارہ منعقد ہوئی۔ وقفہ سوالات کے دوران سبھی جماعتوں کے کارپوریٹرز نے مختلف عوامی مسائل اٹھائے اور ان پر جم کر بحث کی۔ کچھ معاملات پر حزب اختلاف اور برسر اقتدار کارپوریٹرز آمنے سامنے دکھائی دیے، جس کی وجہ سے کچھ دیر کے لیے میٹنگ کا ماحول گرما گیا تھا۔ 25 اگست کو معطل شدہ میونسپل جنرل باڈی کی میٹنگ آج دوبارہ سے منعقد کی گئی، جس میں شہر کے مختلف علاقوں میں ڈرینیج لائن چوک اپ اور سڑکوں پر گندا اور بدبودار پانی بہنے کے معاملے پر میونسپل انتظامیہ سے جواب طلب کیا گیا۔ ارکان نے متعلقہ کھلاری کانٹریکٹر کے کام کاج پر بھی سوالات اٹھائے۔ شکایت کی گئی کہ متعلقہ افسران فون نہیں اٹھاتے، جبکہ میونسپل کارپوریشن کے ڈرینیج شعبے کے پاس چوک اپ نکالنے کے لیے ضروری مشینری اور انتظام موجود نہیں ہے، جس کے بعد شہریان کو کئی دن تک پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس معاملے پر ایوان میں ونچت بہوجن آگھاڑی کے منتخبہ کارپوریٹر افسر خان، شیو سینا کے رشید مامو، شیواجی دانڈگے، ہاؤس لیڈر ناویندر، MIM کے میر واجد علی سمیت تمام سیاسی جماعتوں کے منتخبہ کارپوریٹرز کی جانب سے انتظامیہ اور کانٹریکٹر کے خلاف شدید ناراضگی کا اظہار کیا گیا۔ ارکان نے مطالبہ کیا کہ ڈرینیج کے مسائل فوری طور پر حل کیے جائیں تاکہ شہریان کو گندے پانی اور بیماریوں کے خطرے سے نجات مل سکے۔ اسی طرح BJP کے کارپوریٹر راجوان کھیڑے نے الزام عائد کیا
के जटवाड़ा रोड पर बिजली के पोल की शिफ्टिंग के काम में MIM के एक कारपोरेटर के वालिद मदाखलत करते हुए मुसलसिल रुकावट पैदा कर रहे हैं। मामले पर वजाहत देते हुए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के बरकी शोबे की सरबराह गायकवाड़ ने ऐवान को बताया कि काम के दौरान मुताल्लिका कारपोरेटर के वालिद की जानिब से ठेकेदार के काम में मुदाखलत और रुकावट पैदा करने की शिकायत सामने आई है। इस वजाहत के बाद बरसरे इक़्तिदार कारपोरेटर्स ने मुताल्लिका शख्स के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करने और मुताल्लिका MIM के कारपोरेटर की रुकनीत मनसूख करने का मुतालबा किया, जिसके बाद ऐवान में ज़बरदस्त हंगामा शुरू हो गया। दोनों जानिब के कारपोरेटर्स जारहाना अंदाज में आमने सामने नज़र आए। अपोजिशन लीडर समीर साजिद बिल्डर ने वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा कि अगर किसी कारपोरेटर का रिश्तेदार भी गैर कानूनी तौर पर काम में रुकावट पैदा करता है तो इंतज़ामिया को उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी ही चाहिए। दूसरी जानिब मुतादिद अरकान ने मुताल्लिका कारपोरेटर और उनके वालिद के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करने और कारपोरेटर की रुकनीत मनसूख करने का मुतालबा ज़ोरदार अंदाज में उठाया। मामले को संजीदगी से लेते हुए मेयर समीर राजूरकर ने इंतज़ामिया को सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए ज़रूरी कार्रवाई करने की हिदायत दी। इस दौरान ऐवान में काफ़ी देर तक कशीदगी और हंगामे की सूरत हाल बरकरार रही। मुंडा से जो मुंडे का पानी आ रहा ना वो पूरा नीचे हरी मई तक जा रहा, नदी बह रही है। 6 महीने से मैं बोलने के बाद काम नहीं हो रहा सर। वहाँ आपने खुद देखे एक नदी के जैसा पानी बह रहा वहाँ पे, और रमजान का महीना था फरवरी महीने में। मैं कंटिन्यू जनवरी के बाद से 25 जनवरी के बाद से फॉलो अप ले रहा। ये उसके नक्शे किल्लारी वाले के ये नक्शे हैं और इस तरह से उसने वहाँ पे लाइन डाले हुआ है। ये मैं भी आपको दे देता एक कॉपी। तो इसकी पेमेंट रुकाइए साहब और उससे वो काम रेक्टिफाइड करवाइए, क्योंकि उसके वजह से पूरे रमजान के महीने से लेके आज तक के लाल मस्जिद में इंटर करने के लिए जगह नहीं है साहब। वही डोर के ऊपर से पानी में से जाना पड़ रहा है। मीटिंग झाल्यानंतर सन्मान्य सदस्य ती माझ्याकडे राम मंदिर के बाहर जो विजिट हुई है अभी तक 3 से 4 महीने हो गए हैं। राम मंदिर से लेकर आज़ाद चौक की जो बड़ी किल्लारी की एक लाइन है तो वो अभी ड्रेनेज लाइन है। बर तर त्याच्यामध्ये माझं असं मत आहे तुम्हाला नाही का की सारखं चोकअप होतं की परत त्या चोकअप साठी तुम्ही डबल बिल देण्यात आलेलं आहे। ठीक आहे खुलासा करा मोबाईल दुरुस्तीच्या कामाचं एक्सलेशन होऊ शकतं का परत, त्याविषयी मला तुम्ही उत्तर द्या की हे सगळंच मला संशयास्पद वाटतं। ठीक आहे ना, आता हे प्रश्न तुम्ही त्याच्यासाठी मला एक कमिटी नेमा आणि देयक देणं थांबवा, त्याविषयी मला मेडिकवर अस्पताल के माहिर डॉक्टर्स ने एक मरीज़ के लबलबे के कैंसर के सबब पित्ते की बंद नाली को जदीद इंडोस्कोपी के जरिए खोल दिया। नमस्कार, आपण जे आता पेशंट ट्रीट केलं आहे ते एक ॲडव्हान्स पॅन्क्रियाटिक कॅन्सर म्हणजे स्वादुपिंडाचं शेवटच्या टप्प्याचं जे कॅन्सर होतं त्या पेशंटला कावीळ असल्यामुळे किमोथेरपी ड्रग देता येत नव्हते। अशा पेशंटमध्ये जे पित्तवाहिनीचं जे ब्लॉकेज असतं ते काढण्याकरता 2च पर्याय असतात, एक असतं सर्जरी, दुसरं असतं एंडोस्कोपीद्वारे। आपण पेशंटला ऑलरेडी ॲडव्हान्स स्टेजचं कॅन्सर असल्यामुळे सर्जरी न करता एंडोस्कोपीद्वारे ज्यामध्ये काही टाके येत नाही तसं एक पोटाच्या आतूनच आतल्या आत एक बायपास क्रिएट केला आणि त्यामध्ये स्टेंट टाकून पित्तप्रवाह लगेच चालू केला। या सर्व गोष्टींमुळे पेशंटला दुसऱ्या दिवशी आम्हाला घरी पाठवता आलं, पेशंटच्या वेदना कमी होत्या आणि फर्दर ट्रीटमेंट करता जे कावीळचं प्रमाण कमी पाहिजे किमो देण्याकरता ते आपण अचीव करू शकलो। महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ एनसीपी शरद पवार ग्रुप की जानिब से शहर में क्रांति चौक से डिविजनल कमिश्नरेट तक यलगार तिरंगा व्हीकल रैली निकाली गई, जिसमें साबिक रियासती वज़ीर राजेश टोपे और MP सोनोने समेत ज़िला सदर
ख्वाजा शरफुद्दीन और दीगर ओहदेदारान व वर्कर्स बड़ी तादाद में शामिल हुए और हुकूमत व इंतज़ामिया के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मुल्क में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के मसले को लेकर एनसीपी शरद पवार ग्रुप की जानिब से तिरंगा मोटरसाइकिल मार्च का इनेकाद किया गया। साबिक रियासती वजीर राजेश टोपे और रुकन पार्लियामेंट बजरंग सोनोने की क़यादत में निकाले गए इस मार्च में पार्टी के ओहदेदारान, कारकुनान और नौजवान बड़ी तादाद में शामिल हुए। शुरका ने हाथों में तिरंगा और पार्टी के झंडे थामकर महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ अपनी नाराज़गी का इजहार किया। मार्च के दौरान हुकूमत से अवाम को महंगाई से राहत देने, रोज़गार के मौक़े पैदा करने और नौजवानों के मसाइल हल करने का मुतालबा किया गया। इस मौके पर पार्टी रहनुमाओं ने कहा कि बढ़ती महंगाई से आम शहरी का घरेलू बजट मुतासिर हो रहा है, जबकि बेरोज़गारी के बायस नौजवानों में बेचैनी पाई जा रही है। हुकूमत को अवामी मसाइल पर फौरी तवज्जो देते हुए मौसर इक़दामात करने चाहिए। तिरंगा मोटरसाइकिल मार्च के ज़रिए एनसीपी ने महंगाई और बेरोज़गारी के खिलाफ अपनी जद्दोजहद मज़ीद तेज़ करने का पैगाम दिया। मार्च के दौरान पार्टी कारकुनान में खासा जोश व खरोश देखा गया। देशामध्ये बेरोजगारी भेडसावत आहे, तरुणांच्या हाताला काम मिळत नाहीये, महागाई वाढत आहे। या संदर्भात तरुणाईला कुठेतरी रोजगार मिळाला पाहिजे। या अनुषंगानं मराठवाड्याचे केंद्रबिंदू असताना आमच्या छत्रपती संभाजीनगरमध्ये आज आमच्या पक्षाच्या वतीने एल्गार आम्ही करतोय आणि हा शासनाला आम्ही भाग पाडणार की आमच्या या तरुणांना न्याय मिळाला पाहिजे। पप्पा वडट्टीवार असं म्हणतायत की सुप्रिया सुळेंकडे कुणबी प्रमाणपत्र आहे, मराठा नेत्यांकडे 90% मराठा नेत्यांकडे कुणबी प्रमाणपत्र आहे। ठीक आहे ना, मग असू द्या ना, जे आहेत जे कुणबी आहेत त्यांना दिलं असेल सरकारनं। अच्छा झाला बाईट ओके। अरे गाड़ी पिटाने पाती है। थांबायला बंद केलं गेलं, थांबायला बंद बरंच बाईट केला बीजेपी के इलाकाई सरबराह के ओहदे पर धनंजय कुलकर्णी का तकर्रुर किया गया है, जिस पर उनके इस्तकबाल का सिलसिला जारी है। धनंजय कुलकर्णी की तकर्रुरी के बाद बीजेपी के मराठवाड़ा डिविजनल दफ्तर में उनका शानदार इस्तकबाल और तहनीती प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। इस मौके पर रियासती वजीर अतुल सावे, साबिक़ मरकज़ी वजीर ममलिकत डॉक्टर भागवत कराड़, बीजेपी के शहर ज़िला सदर किशोर शितोड़े, मेयर समीर राजुरकर और संजय केनिकर समेत बीजेपी के मुतादिद ओहदेदारान मौजूद थे। धनंजय कुलकर्णी की तकर्रुरी का मराठवाड़ा के अवामी नुमाइंदों और बीजेपी के ओहदेदारान की जानिब से खैर मकदम किया जा रहा है। शहर के मारूफ तालीमी इदारे मौनाजात कॉलेज में कॉलेज के प्रिंसिपल मजहर अहमद फारूकी के सरपरस्ती में स्कूल और कॉलेज के तलबा के दरमियान तकरीरी मुकाबले रखे गए, जिसमें 70 कॉलेज के 137 तलबा ने हिस्सा लिया और उन्हें दिए गए उन्वानात पर अपने ख्यालात का इजहार किया। मौनाजात कॉलेज रोज़ाबाग औरंगाबाद में प्रिंसिपल डॉक्टर मजहर अहमद फारूकी की सरपरस्ती और वैल्यू एजुकेशन कमेटी के ज़ेर एहतमाम स्कूल और कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के दरमियान एक तकरीरी मुकाबला मुनक़िद किया गया, जिसमें 70 मुख्तलिफ तालीमी इदारों से 137 तलबा और तालिबात ने जोश खरोश के साथ हिस्सा लिया। उन्हें दिए गए उन्वानात पर
मुदल्लिल अंदाज बयान और जानदार तशबीहात से हाजरीन को मबहूत कर दिया। मुसाबक़े के पहले मरहले के तौर पर 24 अगस्त बरोज़ पीर को सिलेक्शन राउंड मुनक़िद किया गया था, जिसमें 3 अलग अलग ग्रुप्स बनाए गए थे। पहले ग्रुप में पंजुम ता हश्तुम जमात के तलबा को शामिल किया गया था, जबकि नहुम ता दहुम जमातों के तलबा को ग्रुप दुव्वम में रखा गया और ग्रुप सीवम में जूनियर और सीनियर कॉलेज के स्टूडेंट्स को शामिल किया गया। सख्त मुकाबले के बाद इस मरहले से कुल 23 इंतहाई लायक तलबा और तालिबात का फ़ाइनल के लिए इंतखाब अमल में आया और 25 अगस्त को सुबह 10 बजे कॉलेज के सेमिनार हॉल में फ़ाइनल मुकाबला मुनक़िद किया गया, जिसमें तमाम तलबा ने तकारीर से समा बांध दिया। इस अहम और पुरवकार इल्मी तकरीब में जेवरी के फ़राइज़ कारी अकरम खान काशिफ़ी और अब्दुल्ला मोहम्मदी ने नहायत दयानतदारी और खुश असलूबी के साथ अंजाम दिए। फ़ाइनल राउंड में पहुँचने वाले तमाम 23 तलबा और तालिबात को असनादात और मोमेंटोज़ से नवाजा गया, जबकि दीगर तमाम शुरका का हौसला बढ़ाने के लिए उन्हें भी असनादात से नवाजा गया। तकरीरी मुकाबले के दौरान नताइज और इनामात का पुरजोश ऐलान इस मुकाबले के कन्वेनर फ़ेरोज़ पठान ने किया, जिनके मुताबिक अव्वल मकाम के लिए डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया कॉलेज फॉर वुमेंस की तालिबा अल्फिया क़दीर शेख करार दी गई, जबकि स्कॉलर इंग्लिश स्कूल की ज़ैनब ज़िक्रा ने दूसरा मकाम हासिल किया। अल्लामा शिबली उर्दू स्कूल की अल्फिया शेख अनवर को तीसरे इनाम के लिए मुस्तहक़ करार दिया गया। चौथे मुकाम पर सैयदा हुमैरा इसहाक़, जो कि अलहुदा स्कूल नारेगांव की तालिबा हैं, उन्हें मुस्तहक़ करार दिया गया। डॉक्टर जाकिर हुसैन जूनियर कॉलेज की ज़ारा काशिफ को 5वां मकाम हासिल हुआ और छठे मकाम पर नेशनल उर्दू हाई स्कूल जालना की उम्मे अम्मारा इदरीस अंसारी काबिज़ रहीं। इसी तरह 10 तलबा को तरगीबी इनामात से भी नवाजा गया। इस तकरीब को कामयाब बनाने में फ़ेरोज़ पठान, मुशीर नदवी, वेकार नदवी, सलीम नदवी, मुकर्रम अहमद, मोहम्मद सिराज, आमिर अलकसीरी और मनोज अजमेरा जैसे फ़आल असातिज़ा और अराकीन ने जालना शहर के चंदन झीरा पुलिस स्टेशन के लिए 5 करोड़ रुपयों की लागत से नई इमारत तामीर की जा रही है, जिसका संग बुनियाद MLA अर्जुन खोदकर और रुकन असेंबली नारायण कुचे के हाथों रखा गया। जालना शहर की बढ़ती ज़रूरतों को मद्देनज़र रखते हुए चंदन झीरा पुलिस स्टेशन की नई इमारत जदीद सहूलतों से आरास्ता होगी। इस इमारत में पुलिस एहलकारों को बेहतर और ज़्यादा साजगार माहौल में काम करने की सहूलत हासिल होगी, जिससे पुलिस इंतज़ामिया की कारकर्दगी में मज़ीद बेहतरी आने की तवक्को है। संग बुनियाद की तकरीब में सनतकार गणेश आमदार गोयल, युवा सेना के रियासती सेक्रेटरी अभिमन्यु खोदकर, पुलिस सुपरिटेंडेंट तेगबीर सिंह सिंधु, एडिशनल पुलिस सुपरिटेंडेंट विक्रम साड़ी समेत पुलिस महकमे के सीनियर अफसरान, मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता मुअज़्ज़िज़ीन और बड़ी तादाद में शहरी मौजूद थे। इस मौके पर मौजूद शहरियान ने कहा कि नई इमारत पुलिस एहलकारों के लिए ज़्यादा बेहतर और जदीद वर्क स्पेस फराहम करेगी, साथ ही अमन व क़ानून बरकरार रखने के लिए ज़रूरी बुनियादी सहूलतों के लिहाज से भी ये इमारत अहम साबित होगी। संग बुनियाद की तकरीब के बाद अफसरान और मुअज़्ज़िज़ीन ने नई इमारत के तामीराती मंसूबे के बारे में मालूमात हासिल की। इस मौके पर उम्मीद ज़ाहिर की गई कि तामीराती काम मुकर्ररा मियाद में मुकम्मल करके इमारत को जल्द अज जल्द शहरियान की खिदमत के लिए दस्तयाब करा दिया जाएगा। तकरीबन 5 करोड़ रुपयों की लागत से तामीर होने वाली चंदन झीरा पुलिस स्टेशन की ये नई इमारत जालना शहर में पुलिस इंतज़ामिया के बुनियादी ढांचे को मज़ीद मजबूत बनाने की सिमत में एक अहम कदम करार दी जा रही है। आणि आता या भाईगिरीच्या जमान्यामध्ये की तुमच्याशिवाय आधार आणि पुढाऱ्याशिवाय आधार निश्चितपणे लोकांना दुसरा कुठला राहिलेला नाही। लोक किती मोठ्या प्रमाणामध्ये कायदा पाळतात, किती मोठ्या प्रमाणामध्ये कायद्याचं उल्लंघन करतात। आपण अलीकडच्या काळात ज्या घटना या ठिकाणी बघतो, कधी गावामध्ये मला आठवतं की आम्ही लहान असताना गावामध्ये एखादा हाफ चड्डीतला पोलिसवाला, आम्ही हाफ चड्डीतले पोलीस बघितलेले, हाफ चड्डीतला पोलिसवाला गावात आला तर संपूर्ण गाव सामसूम होऊन जायचं, कोणी घराच्या बाहेर निघायचं नाही। आणि आज आमच्या समोर चिंता वाटते की आता सार्वजनिक स्थळावरती पोलिसावरती हल्ले होत असताना, पोलीस कर्मचाऱ्यांना मारत असताना जे व्हिडिओ व्हायरल होतात, हे निश्चितपणे नागरिक बंधू भगिनींनो ही चिंता वाटणारी घटना आहे। एखाद्या पोलीसवाल्याच्या अंगावरती हात टाकला, ही निश्चितपणे तुम्हाला मला समाज म्हणून
किंवा माणसं म्हणून न शोभणारी घटना आहे. आपणच या पार्ट आहोत या भूमिकेतले. आपण निश्चितपणे जनता म्हणून आपण आपल्या भावांना आपल्या लोकांना समजून सांगितलं पाहिजे की अशा पद्धतीनं जर कोणी करत असेल तर निश्चितपणे त्याचा बिमोड पोलिसांच्या अगोदर आपण केला पाहिजे. जनता म्हणून आपण हे काम केलं पाहिजे. अशा प्रवृत्ती आपणच आपल्या पातळीवरती निश्चितपणे ठेसून काढल्या पाहिजे किंवा त्यांना समुपदेशन केलं पाहिजे की अशा पद्धतीचे व्हिडिओ जे व्हायरल या ठिकाणी सोशल मीडियावरती होतात. माझी आपल्याला विनंती की अशा प्रकारचे कुठलेही पोलिसांमधला आणि सामान्य माणसामधला वाद हा निश्चितपणे सोशल मीडियावरती लोकांच्या समोर मांडण्याचा कृपा करून प्रयत्न करू नका. परंतु यातून इमेज खराब होते, यातून इमेज खाली जाते आणि मग एकाने बघितले की दुसऱ्याची हिंमत होते, दुसऱ्याने पाहिले की तिसऱ्याची हिंमत होते. आमचा प्रयत्न आहे या राज्याचे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस साहेब याचा कारभार त्यांच्याकडे होम डिपार्टमेंटची, त्यांच्या नेतृत्वामध्ये आम्ही काम करतो. या ठिकाणी सर्व आम्ही निश्चितपणे आधुनिक आणि सक्षम पोलीस दल या ठिकाणी करण्याचा निश्चितपणे माननीय मुख्यमंत्र्यांचा संकल्प या ठिकाणी आहे. बीजेपी युवा मोर्चा के शहर और ज़िला जनरल सेक्रेटरी गणेश सोनटक्के ने हुकूमत और इंतज़ामिया से मुतालबा किया कि नदी जोड़ प्रोजेक्ट के लिए बनाई गई मुतालियाती कमेटी में इलाक़े मराठवाड़ा के अफसरान को भी शामिल किया जाए. बीजेपी युवा मोर्चा के शहर ज़िला सेक्रेटरी गणेश सोनटक्के के मुताबिक हुकूमत की जानिब से साल 2023 में तश्कील दिए गए नदी जोड़ मंसूबे की मुतालियाती कमेटी में मराठवाड़ा के एक भी ऑफिसर को शामिल नहीं किया गया है. इसके अलावा चीफ इंजीनियर का दफ्तर नासिक मुंतकिल कर दिया गया है. मराठवाड़ा में तकरीबन 260 टीएमसी पानी की कमी के बावजूद पानी से मुताल्लिक़ फ़ैसला साजी में इस खित्ते की मुनासिब नुमाइंदगी न होना मराठवाड़ा के साथ नाइंसाफ़ी है. सोनटक्के ने मुतालबा किया है कि मुतालियाती कमेटी में MIDC के 2 अफसरान और 2 आबी माहिरीन को शामिल किया जाए. चीफ इंजीनियर का दफ्तर औरंगाबाद शहर में मुंतकिल किया जाए और मराठवाड़ा में पानी की तकसीम से मुताल्लिक़ हुकूमत की जानिब से वाइट पेपर जारी किया जाए. इत्तला है कि मुसाफिरों की कमी के सबब इंडिगो कंपनी ने औरंगाबाद से नवी मुंबई जाने वाली इतवार की परवाज़ मनसूख कर दी है, जिसके सबब मुसाफिरों में शदीद बेचैनी पाई जा रही है और वो इंतज़ामिया से तवज्जो का मुतालबा करने लगे हैं. औरंगाबाद की फ़िज़ाई सर्विस को एक बार फिर बड़ा धचका लगा है. मुसाफिरों की इंतहाई कम तादाद के बाद इंडिगो कंपनी ने औरंगाबाद से नवी मुंबई की इतवार की परवाज़ को सितंबर के महीने के लिए मनसूख करने का फ़ैसला किया है. कंपनी ने इसकी वजह ऑपरेशनल मसाइल बताई है. ताहम तैयारे में मुसाफिरों की कम तादाद के बायस मुस्तकबिल में ये सर्विस मुकम्मल तौर पर बंद होने का खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है. औरंगाबाद में बड़े पैमाने पर सनती सरमायाकारी के बावजूद शहर की फ़िज़ाई सहूलतों में मुसलसिल कमी होती दिखाई दे रही है. हैदराबाद और गोवा की परवाज़ें पहले ही मुअत्तल की जा चुकी हैं, जबकि बेंगलुरु की सर्विस भी हफ्ते में 4 दिन से कम होकर 3 दिन रह गई है. इसी दौरान मुंबई की मरकज़ी फ़िज़ाई सर्विस को नवी मुंबई मुंतकिल किए जाने के बाद अब इस रूट की परवाज़ों में भी कमी की गई है. इंडिगो की जानिब से 1 से 30 सितंबर के दरमियान नवी मुंबई औरंगाबाद रूट की इतवार की परवाज़ मनसूख की गई है. कंपनी के इस फैसले से नवी मुंबई एयरपोर्ट से रात के वक्त मुंबई शहर के मरकज़ी इलाक़ों तक पहुँचने में 2.5 से 3 घंटे लगने के बाद मुसाफिरों को इजाफी वक्त और अखराजात का सामना करना पड़ रहा है. इसी रूट की शाम की परवाज़ को बराह रास्त छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जोड़ने का मुतालबा भी किया गया था, लेकिन इस पर तवज्जो न दिए जाने के सबब मुसाफिरों का रद्द-ए-अमल कम होने की बात सामने आ रही है. 186 मुसाफिरों की गुंजाइश वाले तैयारे में फ़िलहाल सिर्फ 40 से 45 मुसाफिर सफ़र कर रहे हैं. कम मुसाफिरों की वजह से अब सरमाई निज़ामुल औक़ात में ये सर्विस मुकम्मल तौर पर बंद होने का खदशा पैदा हो गया है. सनती सरमायाकारी के एतबार से अहम समझे जाने वाले औरंगाबाद शहर को बेहतर फ़िज़ाई राब्ते की ज़रूरत है, लेकिन इसके बरअक्स परवाज़ों में कमी से सनतकारों और मुसाफिरों की मुश्किलात मज़ीद बढ़ने का इम्कान है. शहर के क्रांति चौक फ्लाईओवर से नीचे उतरते वक्त एक तेज़ रफ्तार 2 व्हीलर गाड़ी डिवाइडर से जा टकराई. इस भयानक हादसे में
जालना शहर के 2 नौजवानों की जगह पर ही मौत हो गई, जबकि एक नौजवान के शदीद तौर पर जख्मी होने की इत्तला है। क्रांति चौक फ्लाईओवर से उतरते वक्त एक ही 2 व्हीलर पर सवार 3 नौजवानों का अचानक तवाज़ुन बिगड़ गया और गाड़ी सीधे डिवाइडर से जा टकराई। हादसा इतना शदीद था कि समीर सगीर शाह और परवेज़ अफसर शेख की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि इरशाद मदार शाह शदीद तौर पर जख्मी हो गया, जिसे इलाज के गर्ज से अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। जहां बहक और जख्मी तीनों नौजवान जालना शहर के शास्त्री मोहल्ला इलाके के रहने वाले बताए गए हैं। हादसे की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। इस मामले में वेदांत नगर पुलिस स्टेशन में हादसे का केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस सब इंस्पेक्टर निसार शेख मजीद तफ्तीश कर रहे हैं। AI की मदद से जाली नुस्खा तैयार करके नशावर गोलियां खरीदने वाले नौजवान को छावनी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसे फाजिल अदालत ने 2 दिन तक पुलिस कस्टडी में रखने का हुक्म सुनाया है। गिरफ्तार मुलजिम का नाम रजा सुल्तान अब्दुल रहमान शेख बताया जा रहा है, जो बायजीपुरा संजय नगर का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक रजा शेख सिर्फ 12वीं जमात तक तालीम याफ्ता है, लेकिन उसने इंटरनेट, AI और मोबाइल एडिटिंग ऐप की मदद से बिल्कुल डॉक्टर के असल नुस्खे जैसी जाली तिब्बी पर्ची तैयार की। इस प्रिस्क्रिप्शन पर माहिर नफ्सियात की जाली मोहर और दस्तखत के साथ गलत रजिस्ट्रेशन नंबर भी दर्ज किया गया था। इसी जाली नुस्खे की बुनियाद पर मुलजिम मेडिकल स्टोर से गुनूदगी पैदा करने वाली नशावर गोलियां खरीद रहा था। मेडिकल स्टोर के मालिकान को शुबा होने पर उन्होंने मुताल्लिका जहनी सेहत मरकज़ के डॉक्टर से रब्ता किया। तस्दीक के दौरान नुस्खे पर मौजूद दस्तखत और मोहर जाली साबित हुए, जिसके बाद छावनी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुलजिम रजा शेख को गिरफ्तार कर लिया। तफ्तीश में इंकशाफ हुआ कि तकरीबन 30 रुपये में मिलने वाली नशावर गोली मुलजिम खुद भी इस्तेमाल करता था, जबकि कुछ गोलियां शहर के दीगर नशा करने वालों को 500 रुपये से ज़ायद कीमत में फ़रोख्त करता था। पुलिस के मुताबिक नशे की तलब पूरी करने और इससे पैसे कमाने के लिए मुलजिम ने जाली नुस्खे का सहारा लिया। औरंगाबाद पुलिस की जानिब से गुज़िश्ता कुछ अरसे से मुनशियात के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाइयाँ जारी हैं। इस कार्रवाई के बाद नशा आवर अशिया का हुसूल मुश्किल होने के बाद अब नशा करने वाले अफराद की जानिब से नए नए तरीक़े अपनाए जाने का ये मामला एक संगीन मिसाल बनकर सामने आया है। हेलमेट का इस्तेमाल न करने वाले 2 व्हीलर्स के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस ब्रांच की जानिब से खुसूसी मुहिम शुरू की गई है, जिसके तहत आज सिर्फ 4 घंटों के दौरान ही 1130 व्हीकल सवारों पर 11 लाख से जायद का जुर्माना आयद किया गया। ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट से मौसूला इत्तला के मुताबिक शहर में हादसात की शरह कम करने के लिए बगैर हेलमेट 2 व्हीलर चलाने वालों के खिलाफ खुसूसी मुहिम चलाई गई। जुमेरात 27 अगस्त को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक शहर के मुख्तलिफ मकामात पर यह कार्रवाई की गई। इस मुहिम के दौरान बगैर हेलमेट गाड़ी चलाने वाले 1130 2 व्हीलर सवारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मजमूई तौर पर 11,30,000 रुपयों का जुर्माना आयद किया गया है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक हेलमेट इस्तेमाल न करने की वजह से हादसात के दौरान सर पर शदीद चोट लगने के साथ साथ जानी नुकसान के वाक़यात भी पेश आते हैं। इसीलिए बगैर हेलमेट गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई मजीद सख्त की जा रही है। पुलिस कमिश्नर परवीन पवार की रहनुमाई में डिप्टी पुलिस कमिश्नर शर्मिष्ठा घारगे वालावलकर और असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर ट्रैफिक सुभाष भुजंग की निगरानी में ये कार्रवाई अंजाम दी गई। पुलिस इंस्पेक्टर रेखा लोंढे, मंगेश जगताप, पवन चौधरी, असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर रविकांत गचे, सचिन मिर्धे समेत अफसरान और एहलकारों ने मुहिम में हिस्सा लिया। ट्रैफिक पुलिस ने शहरियान से अपील की है कि हेलमेट सिर्फ जुर्माने से बचने के लिए नहीं, बल्कि अपनी जान की हिफाजत के लिए ज़रूर बज़रूर इस्तेमाल करें। पुलिस ने वाज़ेह किया है कि आइंदा भी बगैर हेलमेट 2 व्हीलर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई मज़ीद सख्त की जाएगी। खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हर साल की तरह इस साल भी ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर खुल्दाबाद में पैरहन और मोए मुबारक की ज़ियारतों का किया गया एहतमाम। लाखों अक़ीदतमंदों ने की ज़ियारत, जगह जगह जुलूस और जलसे भी मुनक़िद।
25 अगस्त को मुअत्तल शुदा म्यूनसिपल जनरल बॉडी मीटिंग आज की गई थी मुनक़िद। मुख्तलिफ मामलात पर बरसरे इक़्तिदार और हस्बे इख्तिलाफ के कारपोरेटर्स दिखाई दिए आमने सामने। महंगाई और बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ एनसीपी शरद पवार ग्रुप की जानिब से शहर में निकाली गई तिरंगा व्हीकल रैली। बड़ी तादाद में ओहदेदारान व वर्कर्स हुए शामिल और लगाए हुकूमत और इंतजामिया के खिलाफ जमकर नारे। और नशे की लत पूरी करने एक नौजवान ने एआई की मदद से तैयार कर लिया डॉक्टर का बोगस नुस्खा। दुकानदार की मुस्तैदी से मुलजिम गिरफ्तार। फाजिल अदालत ने सुनाया 2 दिन पुलिस कस्टडी का हुक्म। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।